Assalamualaikum my dear students. I hope all of you are good and safe at your home. Today we will start the most important questions of chapter number 2, 12th class chemistry. I am your instructor of chemistry. Today's the content is important questions and also the MCQs of chapter number 2. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our topic. The very first MCQs is the word alkali is derived from which language? The answer MCQs is A. Arabic, Greek, French, German. तो हमें क्या आपको बताएं जल्दी से आपको क्या आंसर ठीक लग रहा है सोच लिया आपने द करेक्ट आंसर इज ए अरेबिक नाउ विच वन डज नॉट बिलोंग टू अल्कलाइन अर्थ मेटल BE BA RARN the answer is D Dolomite is an ore of strontium, magnesium, barium, potassium. The answer is B. The next is which is not a alkali metal? Francium, cesium, rubidium, radium. The answer is D. Now the next is child saltpeter has the chemical formula NaNO3, KNO3, Na2B4O7, Na2CO3.H2O. हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था. The right answer is A. The next MCQs is alkali metals are acidic in nature, amphoteric in nature, strong oxidizing agent, strong reducing agent. The right answer is D. Next MCQs, the elements of group 2nd A are called alkali metals, alkaline earth, coinage metals, metalloids. The right answer is B. The next MCQs is chemical formula of magnesite is MCQs 1 CaMg3 SiO3 4 MgCO3 MgSO4 MgCl2. What do you think? The right answer is B. Next MCQs which is not present abundantly in earth crust sodium, barium, aluminium, calcium. The right answer is A. Next elements of group 1st A are called alkali metals, metalloids, alkaline earth metals, coinage metals. The right answer is A. Next MCQs which element has lowest melting point? Beryllium, magnesium, calcium, barium. The right answer is B. Next MCQs child saltpeter has the chemical formula NaCl, Na2B4O7, KNO3, NaNO3. The right answer is NaNO3. Next MCQs which is the least reactive of all the alkali metals? Li, Na, K, Cs. The right answer is A. Next, the chemical composition of colemanite is Ca2B4O11.5H2O, Ca3B6O11.5H2O, Ca3B4O7.5H2O, Ca2B6O11.5H2O. What do you think, students? The right answer is D. Next, carmelite is the mineral of beryllium, sodium, magnesium, calcium. The right answer is C. Magnesium. Next, NaCl ore is named as chloride salt, halide, Racky salt. The right answer is C. Halide. Next, natron has the chemical formula NaNO3, KNO3, CaCO3, Na2CO3.H2O. The right answer is D. Na2CO3.H2O.
Next MCQs. Neutron has the chemical formula. I have done this question. So, which element has lowest melting point? Beryllium, magnesium, calcium, barium. The right answer is B. Magnesium. Next MCQs. Dash does not belong to alkaline earth metals. Be, Ra, Ba, Rn. The right answer is D. Rn. Dolomite is a carbonate of Be, Mg, Na, Ba. The right answer is B. Mg. Next, the mineral CaSO4.2H2O has the journal name. Dolomite, gypsum, calcite, epsom salt. The right answer is B. Gypsum. Next, which one of the following oxides is more basic? SRO, BeO, CaO, MgO. The right answer is SRO. Okay. The most metallic element from the following is arsenic, oxygen, antimony, bismuth. The right answer is D. Bismuth. Now the next MCQs. When elements of group 2 alkaline earth metals are exposed to air, they quickly become coated with a layer of oxide. What is the purpose of this oxide layer? The oxide layer exposes the metal to atmospheric attack. B. The oxide layer increases the reactivity of metal. C. The oxide layer protects the metal from further atmospheric attack. D. The oxide layer gives the metal shiny silvery appearance. What do you think the right answer? The right answer is C. The oxide layer protects the metal from further atmospheric attack. ये जितने भी मैं क्वेश्चंस जो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ साथ में मेंशन किया हुआ है कि ई कैट में कौन सा आता है, एम कैट में कौन सा आता है, लाहौर बोर्ड में, मुल्तान बोर्ड में, गुजरांवाला बोर्ड में, तो इसमें जो है वो सारे एमसीक्यू इंक्लूडेड हैं. अगर आप ये एमसीक्यूज को अच्छे से एक बार देख लेते हैं तो आपके बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट होने के बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये वाले वो चैप्टर्स होते हैं जो याद करना बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. तो अगर आप आज की वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको इसके एमसीक्यूज भी जो है वो अच्छे से लर्न हो जाएंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लर्न हो जाएंगे, क्या हमने याद करना है, क्या हमने आंसर करना है, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा. तो नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारा टॉपिक था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें से कौन से एमसीक्यूज जो है वो बनते हैं. तो उसमें देखें CaCl2 इज एडेड टू NaCl इन डाउन सेल टू डिक्रीज सॉलेबिलिटी, decrease dissociation, decrease melting point, decrease conductivity. What do you think the right answer? The right answer is C. Decrease melting point. Now the next question. In Nelson cell, for the production of sodium hydroxide, cathode is made up of mercury, graphite, iron, steel vessel, lined inside with asbestos. What do you think the right answer is? The right answer is D. Steel vessel lined inside with asbestos. Dan's cell is used to prepare sodium metal, sodium bicarbonate, sodium carbonate and sodium hydroxide. The right answer is A. Sodium metal. The next question is Nelson cell is used to prepare NaOH, Na2CO3, Na metal यानी सोडियम मेटल एंड सोडियम क्लोराइड. व्हाट यू थिंक द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ए. सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. तो ये थे आज हमारे इसके एमसीक्यूज. अब हम जो है क्वेश्चंस जो है वो करेंगे. आपने अपनी बुक के खोलनी है, उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो राइट करना है जहां जहां पे वो क्वेश्चन बनता है, ताकि आपको इस बुक चैप्टर को प्रिपेयर करना आसान हो जाए, क्योंकि मोस्टली बच्चे इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस लर्न करते हैं. तो आपने साथ अपनी केमिस्ट्री की बुक खोलनी है और उसके ऊपर लेड पेंसिल के साथ जिस पेज से क्वेश्चन है वो आपने जो है वो नोट डाउन कर लेना है. हाँ, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से है उसका आंसर आपको बुक से नहीं मिलता तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके वहां पे आपने राइट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर राइट कर लें. अगर आपको फिर भी समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. जो आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन है, व्हाई मेंबर्स ऑफ सेकंड ग्रुप
are called alkaline earth metal. Y group second A elements are called alkaline earth metals. तो दोनों तरीकों से क्वेश्चन आता है. अब हम क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि सेकंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं. तो हमने फर्स्ट ही पेज पे स्टडी किया था. एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकंड ए आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल. क्या रीजन था उसका कि ये जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अल्कली बनाते हैं और ये अर्थ के ऊपर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. और इसकी हमने एग्जांपल लिख देनी है BE MEMGCASRBARA. मैं यहाँ से रीड भी करती हूँ. एलिमेंट ऑफ सेकंड ए आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. Alkaline earth metals are given this name because they form alkalis in water and are widely distributed in earth. These include Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Now the next question, why are the elements of group first A are called alkali metals and that of group second A alkaline earth metals? और ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है. S block elements are called as alkali and alkaline earth metals. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए. हम इनका आंसर करेंगे. अल्कली मेटल्स फर्स्ट ए के जो ग्रुप है उसको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं. अल्कली एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है ऐश. और क्योंकि अरब में ऐश के अंदर सोडियम और पोटेशियम अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता था इसलिए वो इन्हें अल्कली कंसीडर करते हैं. अल्कली मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम आ जाता है और ये वाटर के साथ अल्कली प्रोड्यूस करती हैं इसलिए हम इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. नेक्स्ट था अल्कलाइन अर्थ मेटल. ये मैंने आपको अभी ही डिस्क्राइब किया है. सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं और BeMgCaSrBaRa अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है. बुक से मिल भी गया होगा, फर्स्ट पेज पे गिवन है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. जस्टिफाई के रिएक्टिव क्यों है ये आपने बताना है. अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है. ये हमने उसी जो है वो सेकंड पेज पे चेक कर लें. आप बुक में थोड़े जो है पेज नंबर चेंज हो जाते हैं तो आपने फर्स्ट 2 पेजेस के ऊपर इसको फाइंड आउट करना है. अब देखिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है. आयनाइजेशन एनर्जी लो है इट मींस दैट दे रेडली लूज देयर इलेक्ट्रॉन. इजीली लूज कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को इसलिए हम इन्हें रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं. और ये फ्री स्टेट में नहीं बल्कि कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं. ओके, यहां से रीड भी कर देती हूँ. बोथ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी thus they lose electron readily. Therefore they are very reactive. Hence they do not occur free in nature. They are found in combined state. Next question, why alkali metals are strong reducing agents? कि alkali metals strong reducing agents क्यों हैं? Reducing agents क्या होते हैं? Reducing agent like alkali metals can easily lose electrons. जो दूसरे को reduce करते हैं खुद ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. दे आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं आसानी से. thus they can reduce substance and act as an excellent reducing agent. And example is 2Na plus Cl2 after reaction 2NaCl. In this reaction sodium give electron to chlorine and reduce it. Okay, I hope कि आप क्वेश्चन क्लियर हो गया है. अक्रेंस हमारा टॉपिक था तो हम अक्रेंस के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं. राइट डाउन नेम एंड फॉर्मूला ऑफ मिनरल ऑफ लिथियम. लिथियम इज फाउंड एज अ कम्प्लेक्स मिनरल विच आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, लिथियम जो है वो कम्प्लेक्स मिनरल होती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. कमर्शियली हम जो है वो स्पोडामीन से लेते हैं. LiAlSiO3 ट्वाइस. अच्छे से लर्न करना है आपने. नेक्स्ट है हमारे पास राइट फॉर्मूलाज ऑफ बोरेक्स एंड चाइल्ड साल्ट पीटर. मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है. चाइल्ड साल्ट पीटर NaNO3 एंड बोरेक्स Na2B4O7.10H2O.
गिव फॉर्मूला ऑफ रॉक साल्ट एंड नेट्रॉन, रॉक साल्ट हैलाइड NaCl, नेट्रॉन Na2CO3.H2O। ये हमने MCQs में भी किया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, राइट केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ चाइल्ड सॉल्ट पीटर एंड सिल्वाइट, सिल्वाइट KCl एंड चाइल्ड सॉल्ट पीटर NaNO3। राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, बेराइल, बराइट, ब्राइल, बराइट। ब्राइल का क्या है, Be3Al2SiO3 6 एंड बेराइट BaSO4। नेक्स्ट, गिव फॉर्मूलाज ऑफ गिवन मिनरल्स, चाइल्ड सल्फेट एंड फॉस्फोराइट। चाइल्ड सल्फेट देखें हर बोर्ड वाले ने जो है वो बार बार दिया हुआ है, तो इट मींस दैट इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। NaNO3 चाइल्ड सल्फेट, फॉस्फोराइट Ca3PO4 twice। राइट फॉर्मूला ऑफ बेराइल एंड सिल्वाइट, बेराइल Be3Al2SiO3 6 and सिल्वाइट KCl। Give the name and formula of common minerals of Be, beryl and chrysoberyl। ठीक है, Be3Al2SiO3 6 beryl and chrysoberyl Al2BeO4। जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम है हम किस तरह से मिनरल्स याद करें, तो आपने क्या करना है, उनके लिए एक सजेशन है, आपने एक पेज लेना है, इनका आपने नेम लिखना है बड़ा करके, और अपने बेडरूम में जहाँ पे आप डेली जो है सोती हैं, जहाँ पे बहुत आना जाना है आपका, उस सामने आपने इसको पेस्ट कर लेना है। आते जाते आपने उसको रीड करना है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप दिन में 50 बार रीड करें, इतना भी नहीं, मतलब डेली आपने जो है वो 2 मिनट 3 मिनट ना उसको देख लेना है और उसको एक बार ना रिवाइज कर लेना है। ठीक है, कभी कभी आप फारिग हो, आपने ब्रेन में मेमोराइज करें, अच्छा ये वाला था, इसका ये फॉर्मूला था, तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है इससे याद करने का। इसके अलावा हमारे पास इसका कोई ट्रिक नहीं है कि हम इस तरह से इसको याद कर लें। तो आप अपने रूम में पेस्ट करें तो इंशाल्लाह आपको एक मिनरल्स जो है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। मैं ये नहीं कहती कि आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेंगी, क्योंकि हमें इतनी देर तक कोई चीज़ याद नहीं रहती, काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक आपको ये याद रहेगी। नेक्स्ट है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द अकरेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देखिए आया है कभी कभार जो है ये बोर्ड में आता है, दीज आर वेरी रिएक्टिव, देयरफॉर दे डू नॉट अकर इन फ्री in nature, they are found in combined state, their compounds occur widely in nature। Magnesium and calcium are very abundant in earth crust, outer portion of the earth was originally in the form of silicates and aluminum silicate of the alkaline earth metals। ये तो आंसर आपको आसानी से बुक के अंदर गिवन है, वहां से आपने उसके ऊपर क्वेश्चन राइट कर लेना है, ताकि जब आप प्रिपेयर करें तो आपको ये ना हो पहले आप कॉपी ढूंढे, पता नहीं कहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे थे, वो पेज जो है उसके ऊपर लिख लेते हैं, वो घूम जाता है। इसका सोल्यूशन ये है कि स्टिकी नोट्स ले लें, उसके ऊपर आप लिख लें, या फिर आप बुक के ऊपर ही जो है वो लेड पेंसिल के साथ जो है वो क्वेश्चंस लिख लिया करें, ताकि आपको प्रिपेयर करने में, टेस्ट प्रिपेयर करें, जब भी चैप्टर को प्रिपेयर करें तो बहुत आसान हो जाए आपके लिए याद करना। नेक्स्ट हम करते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अलॉन्ग विथ सोडियम एंड पोटेशियम आर प्रेजेंट इन रॉक एज केटाइन। मैग्नीशियम हैलाइड आर फाउंड इन सी वाटर। Magnesium is essential part of chlorophyll. Calcium phosphate and calcium fluoride are also found as minerals. Calcium is important constituent of living organism. It is found in bone, teeth, seashells and eggshells. ठीक है, ये हमने पहले भी चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको इनकी नहीं पता या प्रॉपर्टीज हैं वैसे ही याद करनी है, तो मैं प्रीवियसली जो है चैप्टर की जो वीडियोस का लिंक है वो भी ऐड कर दूंगी, ताकि आप इसको भी दोबारा से अंडरस्टैंड कर सकें। Write the formula of natron and dolomite. Natron Na2CO3.H2O, dolomite MgCO3.CaCO3। Write down name and formula of 2 ores of potassium, KCl.MgCl2.6H2O, carnallite and silvite KCl। तो ये थे हमारे इसके occurrence के बारे में क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्वेश्चंस कर लेते हैं। Why is CaCl2 added in molten sodium chloride in down cell? यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा, राइट मेन एडवांटेजेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। तो अब आपने इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, इन डाउन सेल सम
Added in molten sodium chloride to lower the melting point of sodium chloride from 801 डिग्री सेंटीग्रेड to 600 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि इतना ज़्यादा हम प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर हम उसको CaCl2 ऐड कर देते हैं ताकि वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हो जाए। अब ये लोअर टेम्परेचर के ऊपर जब ऑपरेट होता है तो मेटालिक फोक प्रोड्यूस नहीं होती। लिक्विड सोडियम जो है 600 पे हम कलेक्ट कर लेते हैं और प्रोडक्ट जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता मटेरियल ऑफ द सेल, यानी कि जिसका वो मटेरियल का बना हुआ होता है उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करता। तो ये थे उसके एडवांटेजेस, बुक में गिवन है, आपने वहां पे लिख लेना क्वेश्चन। व्हाट आर द टू प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द नेल्सन सेल्स। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने आपको ये करवाया था तो मैंने आपको तभी जो है वो बताया था कि ये इसकी प्रॉब्लम है और हम इसको रिमूव किस तरह से करते हैं। The first problem, ACl negative produced can react with hydroxyl ion to give OCl negative hypochlorite ion. Cl2 plus 2H negative OCl negative Cl negative H2O. This problem can be removed by using asbestos diaphragm which keep the two solutions separate and allows sodium to move to cathode. The movement of ion keep the current flowing through the external circuit. The second problem, OH negative may be attracted to anode where it can discharge to give O2 gas which make the liberated Cl2 impure. 4H negative after reaction 2H2O plus O2 plus 4 electron. It is removed by keeping the level of brine in anode compartment slightly higher. This keeps the reduction of flow of liquid toward cathode. Thus it prevents the movement of hydroxyl toward anode. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये आपने उसके ऊपर राइट कर लेना है। ये अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख लें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब इसका क्वेश्चन कौन सा आता है, हाउ क्लोरीन प्रोड्यूस्ड इन डायफ्राम सेल इज प्रोटेक्टेड टू रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, फर्स्ट प्रॉब्लम मेंशन कर देनी है। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन देखें। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है, कितनी बार आया हुआ एग्जाम में, डिस्क्राइब द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल्स। और दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग क्या है, व्हाट इज नेल्सन सेल, ड्रॉ इट्स डायग्राम एंड शो इट्स वर्किंग। नेल्सन सेल की डायग्राम भी अच्छे से करनी है और उसकी वर्किंग भी अच्छे से करनी है। नेक्स्ट देखें, लॉन्ग क्वेश्चन क्या आया है, डिस्क्राइब द टू प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा। NaOH को देखे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, तो वो ये भी पूछ लेते हैं, बाय नेल्सन सेल एंड हाउ दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। तो आपने ये क्वेश्चंस राइट कर लेने हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, अगर समझ आ गई है आपको आज के लेक्चर की, तो कमेंट में ज़रूर कमेंट किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।